When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. I would like to welcome all of you once again. We are very sorry. There are few technical glitches by which audio was not audible to all of you. We are going to start again. Yes, am I audible? Absolutely. Yes. Yes. Okay. So just to start with the introduction of this particular webinar, we are here to know do and don'ts of the first, second, and third trimesters. And this particular webinar has been conducted in association with Kotlife. Just a glimpse of Kotlife. Kotlife is a stem cell banking company. Many of you would be aware of the company and concept. Just to give a brief about the concept, we deal in stem cell banking. Stem cell banking, where we used to preserve the stem cells. What are stem cells? Stem cells basically just like a seed. जैसे एक बीज से एक पौधा बनता है, उस पौधे से फ्रूट्स, फ्लावर्स, उसकी तरह तरह की ब्रांचेस बनती है, उसी तरह से एक स्टेम सेल्स जब वूम में स्टेम सेल्स का फर्टिलाइजेशन होता है, वो स्टेम सेल्स अगले 9 महीने तक एक बच्चे का फॉर्मेशन करता है. तो वी ऑल आर मेड अप ऑफ स्टेम सेल्स ओनली. Again, this is the umbilical cordlet. This is how it looks like at the time of delivery. When baby born, we used to disconnect the cord, which is a medical wastage. We used to extract entire blood out of it, which is called as संजीवनी. Modern science में इसे हम संजीवनी की तरह बोलते हैं, because इस umbilical cord के अंदर वो stem cells हैं जिस stem cells से बच्चे का formation हुआ है, live condition में रहते हैं, और इस stem cell का use करके हम more than 100 disorder को treat कर सकते हैं. नाउ जब हम प्रोसेस करते हैं उस अम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को, तो 3 अलग अलग तरीके के स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं. एक होता है हेमेटोपोएटिक, सेकंड इज मेसेनकाइमल, थर्ड इज एपिथेलियल. हेमेटोपोएटिक रिप्रेजेंट ब्लड, मेसेनकाइमल रिप्रेजेंट कॉर्ड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉर्ड, who represent liver, bone, cartilage, heart, muscle, nerve and fat tissue. And third one is very unique to cord life, patented by cord life in India and in other many countries. These are few success stories. I would like to share these success stories with you of a stem cell treatment, where first success story is of Rayan. This baby born with the deficiency of leukemia. There is no stem cell preserved for that baby. Their parents planned for another baby to get the preservation done, and by using the stem cell of sibling, Rayan has been treated well. Another one is Georgia. You can see here, Georgia was the cerebral palsy patient. Within a 3 year of delivery, parents got to know about this deficiency. Fortunately, they have gone through the preservation of stem cells with the Cord Life, and using the stem cells, they treated Georgia well. Neuroblastoma, you would be aware of this disease, which is very deadly disease. This particular disease has, in this particular case, Justine has born with this disease, neuroblastoma, and fortunately, their parents preserved their baby stem cells, and using their stem cells, this baby has been treated well. This is the one of the first transplant we have done in India, Moinam Pal. Using the stem cell of his sibling, we have treated Moinam Pal well. The condition which we have treated is thalassemia major, which is very common nowadays in India. This is our facility, which is situated in Calcutta, where we used to store umbilical cord blood and umbilical cord tissue stem cells.
Just to give a glimpse about the Cord Life on global platform, we are the Asia's first company who started stem cell banking from Singapore and having a presence of more than 10 years. और अगर हम अपने नेटवर्क की बात करें, we are the widely network company in India and Asia Pacific. Right now, we are having more than 5.5 lakh parents who trusted us, preserve their baby stem cells with us. We are internationally acclaimed and certified company and listed in 2 different stock markets internationally. This is one of the technology which we use for the process of cord blood. This technology is nothing just to make sure that whatever we are going to process, we are going to extract best out of it. This is the technology which has been used by only Cord Life in India. And another patent technology of Cord Life is Optima, which makes sure that we are going to extract 2 different kinds of stem cells from the umbilical cord, which is MSCs and EPSCs, mesenchymal stem cells and epithelial stem cells. Now, just to save your time, मैंने थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट किया है. आई वुड रिक्वेस्ट यू, कोई भी क्वेरी आप लोग को हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं. इन द मीन जब प्रेजेंटेशन चल रही होगी आप अपने क्वेश्चन वहां पे पुट ऑन कर सकते हैं. और प्रेजेंटेशन के लिए यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड. तो जिनको भी प्रेजेंटेशन चाहिए, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट every parent should at least have a knowledge about the concept, so they should go ahead with the presentation procedure. At least it would be free of cost and obligation free. Now this particular program has been conducted in association with Dr. Sumita Arora. She is very renowned gynecologist of Lucknow. I guess all of you would be aware of the doctor. My personal experience with the doctor is like I have known her from the decade, and I can bet in Lucknow she is the one of the best gynecologists we are having. Such is the qualifications, and this is the hospital she owned. Now I ask and I would welcome Dr. Sumita Arora to share a few words. Thank you, Rakesh. Thanks a lot. I thank Cord Life. I thank Cord Life to bring this webinar with us. Thanks for calling Ms. Sonali Shivlani on the webinar. She would be imparting such good knowledge. I have heard her a few times before also, and I think all my patients, all the pregnant females who are attending this seminar would be benefited and would be easily understanding the physiology and the complaints because of those physiological processes going on in our body. So I request Sonali to please start this webinar as we are already late. Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Cord Life. So sorry, mamas. आपको इस glitch के लिए तकलीफ हो गई. एंड ये सैटरडे इवनिंग है, इवन दो आप घर ही बैठे हैं कोविड की वजह से, ऐसा नहीं है कि आपके पास और कोई काम नहीं है. एंड या ऑफ कोर्स मैंने भी ऑलमोस्ट आई थिंक 20 मिनट्स कवर करा एंड देन वी रियलाइज्ड कि यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच. सो आई विल स्टार्ट अगेन, आई विल शेयर माय स्लाइड्स, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ऑलराइट, सो हम फिर से शुरू करते हैं. We are here to talk about pregnancy care and मेरा नाम सोनाली है, मैं मुंबई से हूँ. I'm a pregnancy and postnatal consultant. पिछले 17 years से इस space में हूँ and I'm also a mother. ये मैं actually अपना सबसे बड़ा introduction हमेशा share करती हूँ that I am a mother, but I'm a mother to 2 grown-up kids. So it's a journey which is always fun, which is always something which I remember. And one of the things that I said when I started earlier is that even today, when I think about my parenting, my pregnancy, my motherhood journey, it is one of the best that I have. अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रेगनेंसी के बारे में. प्रेगनेंसी एक्चुअली हम 4 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. जो पोस्ट डिलीवरी का रिकवरी फेज है उसको हम 4th ट्राइमेस्टर बुलाते हैं. हर ट्राइमेस्टर की कुछ खासियत होती है, कुछ चीजें आपको अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में महसूस होती हैं, कुछ चीजें रिपीट होती हैं, कुछ चीजें सारी प्रेगनेंसी में होती हैं. जैसे एग्जांपल नौशिया है, शुरू में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौशिया हो सकता है, किसी किसी को फुल 9 मंथ्स के लिए होता है.
तो जब मैं अलग अलग ट्राइमेस्टर्स के बारे में बात करूं और अगर आपका वो ट्राइमेस्टर पूरा हो चुका है तो आप फिर भी सुनिए, क्योंकि ये हो सकता है कि फ्यूचर में मतलब सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में वो सेम इश्यू आपको दोबारा हो सकता है। अब पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। तो हम शुरू होते हैं जनरली घर पे, पीरियड मिस हो गया, केमिस्ट से हमने स्टिक टेस्ट लाया, होम प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव न्यूज है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एंटीनेटल यानी कि डॉक्टर का चेकअप बहुत जरूरी है। ये टेस्ट काफी एक्यूरेट होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी जो केयर आपको डॉक्टर से मिलता है प्रॉपर हर चीज को वेरीफाई करके चेक करके, ये बहुत ही जरूरी है कि आप डॉक्टर का चेकअप करवाएं। मेरी मम्मी लखनऊ से है एंड वो उनका तो कहना है कि पहले 6 महीने डॉक्टर के पास जाना नहीं है, 7th मंथ में नाम लिखाते हैं। तो मुझे ऐसे ही ज्ञान दिया गया था जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, बट आई डिड नॉट लिसन टू हर। वैसे हर बात मानती हूँ मम्मी की, बट ये नहीं मानी थी एंड आई सेड नहीं, बहुत जरूरी है, आई वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद माय बॉडी एंड आई विल डू माय एंटीनेटल चेकअप्स रेगुलरली। रूटीन ब्लड टेस्ट और स्कैन पहले तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, उसके बाद आम टेस्ट जो होते हैं आयरन, शुगर, थायराइड और जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, क्योंकि ये आपके बच्चे की डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी ऑफ दीज। तो ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। मार्कर टेस्ट टू चेक फॉर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, तो कौन सा वाला करवाना है ये आपको डॉक्टर लिख के देंगे। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप इतने सारे टेस्ट लिखवा के लेके आते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर तो क्या है सब टेस्ट ही करवा रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लिए और आपके बेबी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इन टेस्ट के रिजल्ट्स की वजह से वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वूम, राइट। और अगर उसमें कोई इंटरवेंशन की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो वी कैन हेल्प यू विद दैट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इमीडिएटली 6, 7, 8 वीक्स में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का ख्याल होता है। ऐसा लगता है कि पानी पीना बंद कर दें, बट डोंट डू दैट, बिकॉज इससे आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है। अनोइंग है, पब्लिक बाथरूम्स नहीं यूज कर सकते, प्रेफर्ड है अवॉइड करें, बट लेकिन फिर भी पानी पीना इज वेरी एसेंशियल। मेन चीज जो आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ कि रात को अगर आपको बार बार उठना पड़ता है, तो ड्यूरिंग द डे आप अपना लिक्विड इनटेक कंप्लीट कर दीजिए और सोने से पहले जो सिप सिप पानी लीजिए, बहुत ज्यादा पानी उस टाइम पे मत लीजिए। थकावट बहुत नॉर्मल है। मैं खुद याद है मुझे कि प्रेगनेंसी हुई नहीं कि मुझे नींद आना शुरू होती थी, तो 5 बजे नहीं शाम के मैं सो जाती थी, एंड जो नॉर्मल मेरे लिए ऐसा है नहीं कि आई डोंट जनरली स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो ये एक काफी नॉर्मल इवेंट है। आफ्टर ऑल आपकी बॉडी एक नया जीव, एक फुल बेबी को बनाने की मेहनत कर रही है। लोअर बैक पेन भी काफी कॉमन है प्रेगनेंसी में एंड स्टार्टिंग से ही फील होता है, और ये इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है और एब्डोमेन में वेट इंक्रीज होता है, तो ये पेन आपको इंक्रीज होने के चांसेस है। ब्रेस्ट में चेंजेस तो कभी कभी तो डॉक्टर की विजिट से पहले ही नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट आपके सेंसिटिव फील करते हैं, ब्रा पहनने का मन नहीं होता, एरियोला बिल्कुल जैसे लार्ज और डार्क हो जाती है। तो ये एक कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम है। नौशिया हार्मोन्स की वजह से होती है। डॉक्टर्स अगर बिल्कुल कुछ नहीं खाने का मन हो रहा है या नहीं खा पा रहे, उल्टियां हो रही हैं, तो आप मेडिकेशन ले सकते हैं। ये मेडिकेशन सेफ है, बट कुछ सिंपल होम रेमेडीज हैं। आप जिंजर फ्लेक्स ट्राई कर सकते हैं। खाली पेट पानी या जूस या नारियल पानी ना लें। फ्रूट वगैरह भी, एक कुछ ड्राई पीस ऑफ टोस्ट, रोटी या ब्रेड खाकर फिर आप लें, तो आपको उससे आराम आएगा। और कहीं पर आपके कोई ट्रिगर्स हैं, जैसे कोई स्मेल है, किसी किसी को ऐसे ना दाल बन रही है तो बस अब सहन नहीं हो रहा, उल्टी आ जाती है, तो उन स्मेल से और या उन टेस्ट से आप थोड़ा सा दूर रहें। अब आते हैं थोड़ा सा सेकेंड ट्राइमेस्टर पे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे फन टेस्ट होता है एनामली स्कैन। इसमें आपके बेबी के हर पार्ट को आपको दिखाते हैं, एंड मेरी रेकमेंडेशन तो ये रहेगी कि स्कैन पे जाने से पहले 15-20 मिनट्स पहले आप एक ग्लास ऑफ, अगर आपका शुगर लेवल्स वगैरह नॉर्मल है, तो एक ग्लास ऑफ कोल्ड कोई भी ठंडा स्वीट जूस पी लीजिए।
क्योंकि इससे आपके शुगर लेवल्स बढ़ते हैं और आपके बेबी की एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाती हैं. So baby gives a good, demonstration on the scan, which is very helpful. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाया जाता है, जो पहले आपने रैंडम शुगर किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. अभी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टू गेट अ मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कि आपकी बॉडी का शुगर टॉलरेंस क्या है. ब्लड प्रेशर और वेट चेक हर विजिट पे होता है, और अगर आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो आपको फ्लू शॉट भी दिया जाएगा. अभी वजन तो बढ़ ही रहा है. अगर आप अब तक अपनी प्रेगनेंसी छुपा सके थे कि हम फर्स्ट पहले किसी को बताते नहीं, गुड लक नहीं होता वगैरह वगैरह, तो अब तो टमी दिखाई देगा और सबको पता ही लग जाएगा कि गुड न्यूज इज ऑन द वे. आपकी एपेटाइट इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज एपेटाइट अब नौशिया सेटल हो रहा है तो खाने पीने का फिर मन होता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द फन ट्राइमेस्टर, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाती है. वो सडनली जो अजीबो गरीब समय पर सोने की फीलिंग होती थी वो रिड्यूस हो जाती है. एंड इस समय आपको अपने पोस्चर पे बहुत ही फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आपका बेली वेट इंक्रीज हो रहा है, तो इससे स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा है. ये कुछ पोस्चर सजेशंस है. खड़े होते समय अगर आप ये वाला इमेज देखते हैं, जो इमेज ऑन द राइट है, तो इनका जो है लोअर बैक में आप ये कर्व देख रहे हैं. दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कॉजर, और उसको इसकी वजह से बैक पेन होगा. तो जब भी आप स्टैंड करते हैं, आप इंश्योर करिए कि आप बिल्कुल इरेक्ट रहिए एंड अपने शोल्डर्स आपको पुश बैक करने हैं, ताकि आपका जो वेट है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. इसकी वजह से आपके बैक पेन के काफी प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएंगे. बैठने के लिए भी आपको फुल सपोर्ट लेना चाहिए. अगर आप ये वाली इमेज देखते हैं, जो इमेज ऑन द लेफ्ट है, उसने अपने लोअर बैक को बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट नहीं दिया है, वो पूरा स्लाउच कर रही है. अगर आप उसका पोस्चर देखेंगे तो इट्स लाइक अ स्लाउचिंग पोस्चर, तो इससे इसको बैक पेन काफी होगा. लेकिन अगर जो भी उसके पास चेयर है, उसने फुल बैक सपोर्ट अपने आप को पुश बैक करके इरेक्ट बैठने का प्लान रखा है, तो उसको बैक पेन कम होगा. भूख भी बहुत लगती है, जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में खाने पीने की इच्छा होती है, तो आपको हेल्दी स्नैक्स के बारे में सोचना चाहिए. कोई भी अनाप शनाप चीजें नहीं खानी चाहिए. मुझे पता है आप लखनऊ से हैं, एंड जैसे मैं मेरी ओरिजिनली फैमिली भी लखनऊ से है, तो मुझे पता है कि लखनऊ में खाने पीने का तो मतलब बात ही कुछ और है. और मम्मी गोलगप्पे या खस्ते, इन सब चीजों की बहुत फॉन्डली बातें करती हैं, बट कुछ चीजों को हमको ध्यान से खाना है ताकि हमारे बेबी के लिए सही डेवलपमेंट हो. जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बेबी के लिए नहीं, पर आपकी पूरी फैमिली को हेल्प कर सकती है. सिंपल है, राइट? अगर आप ही गलत नहीं खाएंगे तो फैमिली में गलत बनेगा ही नहीं, क्योंकि बनाने वाले, किचन मैनेज करने वाले तो मदर होती है. तो ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली के पास कोई चॉइस नहीं होता, उनको भी हेल्दी ही खाना पड़ता है. बेबी की जो फिजिकल डेवलपमेंट है, एक छोटे से नींव से वो पूरा जीव बन जाता है. उसका हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ये सारा जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो इसी समय हो रही है. और बच्चे का जो बर्थ वेट है, जब हम बच्चे का बर्थ होता है, डॉक्टर हमको बताते हैं, तो हम पूछते हैं, राइट, वजन कितना है? क्यों पूछते हैं? क्योंकि 2.5 से 3.5, 2.5 to 3.5 किलोज इज अ गुड बर्थ वेट. अगर इससे बच्चा ज्यादा है तो वो ओबेसिटी है, डिलीवरी में डिफिकल्टी हो सकती है. अगर बच्चा इससे कम है तो वीकनेस है, और डिलीवरी के बाद कुछ चाइल्डहुड इलनेसेस वगैरह ज्यादा हो सकती है. मदर के लिए भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेट मैनेजमेंट हो जाता है. इसकी वजह से हार्मोन्स भी चेक में रहते हैं, और ये सारी चीजों की वजह से आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और सेफ रहती है. अगर हार्मोन्स बैलेंस में है तो डिलीवरी भी सही समय पे होगी. एंड डिलीवरी को सही समय पे होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो प्रेगनेंसी होती है वो हम 40 वीक्स की मानते हैं, और जो फुल टर्म बेबी होता है वो एनी टाइम आफ्टर 37 वीक्स. 37 वीक्स के बाद डिलीवरी होती है तो हम इसको फुल टर्म मानते हैं. और इन बच्चों को NICU या एडिशनल सपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती. खुशी खुशी बच्चा माँ फैमिली के साथ घर जा सकते हैं. बट लेकिन अगर बच्चा जल्दी आ गया तो NICU की जरूरत पड़ जाती है. एंड देन उसमें फिर स्ट्रेस तो आपको भी हो ही जाएगा, पर बच्चे को भी हो जाता है.
एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, आपकी बॉडी अगर तंदुरुस्त है तो डिलीवरी को मैनेज करना, जो एक बहुत डर होता है हमारे अंदर, लेबर, मेरे अंदर भी था जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, तो बाकी सब तो ठीक था बट लेबर से बहुत डर था। अब नहीं है, अब आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया एंड आई हैव 2 babies and I know what labor is all about and it's very very comfortable. It's not as bad as जैसे लोग बताते हैं और फिल्मों में दिखाते हैं, इतना बुरा हाल नहीं होता। तो ये जो, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका जो बर्थ एक्सपीरियंस है वो भी पॉजिटिव रहेगा। प्रेगनेंसी के दौरान आपको 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत है और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त आपको 300 to 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत है। अब ये मैंने क्यों लिखा और आप ये कैसे काउंट करोगे? इट्स रियली सिंपल। जनरली होता है कि लोगों को बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में दुगना खाओ, अब तो तुम डबल हो गई हो, डबल खाओ, पर ऐसा नहीं होता, राइट? जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, आपकी 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दही या 1 ग्लास मिल्क, मतलब जो भी आप कॉम्बिनेशन बना लो, इससे आपके 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज फॉर द होल डे कवर हो जाती हैं। क्योंकि आप जो दूसरे के लिए खा रहे हो वो एक छोटा सा बच्चा है, राइट? और आप तो मे बी 60-65 किलोज की लेडी हो, तो फर्क है। एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। डू नॉट ईट डबल, बट थोड़ी सी आपकी जो खुराक है आपको इंक्रीज करनी है और ये आपको हेल्दी कैलोरीज से लाना बहुत जरूरी है। बैलेंस मील का कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं ना, बहुत आसान है। ये सब हम साइंटिफिक कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं, पर आपको मैं एक सिंपल आसान तरीके से समझा देती हूँ। जब भी आप खाने के लिए बैठते हैं ना, आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। और जब हम 5 चीजों की बात करते हैं तो इनमें आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो है आपके ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपको सीजनल और अलग अलग रंगों के खाने चाहिए, प्रोटीन्स जो आपके बेबी के ओवरऑल ग्रोथ स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, कैल्शियम, तो वो आपकी हो गई चौथी उंगली, और इसमें आपके बेबी का बोन और टीथ डेवलपमेंट हो जाता है, और जो लास्ट उंगली है वो होती है फैट्स। तो जब भी आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर लेते हैं, ये 5 चीजें आपके खाने में होनी चाहिए। अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली मदर्स खा नहीं पाती, तो बेबी के लिए डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत नहीं है। नौशिया की वजह से आपको खाने का मन नहीं होता, मे बी वॉमिटिंग हो रही है, तो प्लीज इंश्योर दैट यू स्टे वेल हाइड्रेटेड। पानी तो सिप 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 करके पीते रहिए। मे बी पूरा 2 ग्लास साथ में नहीं ले सकते, बट इतना साथ एक एक टाइम पे, हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में आपको हाइड्रेट होते रहना है। ऑयली स्पाइसी फूड्स अवॉइड करिए, स्मॉल मील्स लीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसे हम पहले खाते थे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, सैलड, ऐसा खाना जरूरी नहीं है। आप अगर सिर्फ 1 रोटी और कुछ सब्जी ले सकते हो तो ठीक है, फिर 1-1.5 घंटे बाद आप थोड़ा दाल चावल ले लो। तो थोड़ा थोड़ा करके आप अपने मील्स को स्मॉल कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइम पे डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड और एक मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करेंगे। प्लीज इसको लेना मत भूलिए। ये आपके बेबी के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को अवॉइड करता है, और मल्टीविटामिन अगर कहीं कुछ खाने पीने में कमी रह जाती है तो उसको कवर अप कर देता है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर इज कंफर्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपकी एपेटाइट वापस आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रास्ते पे चाट खा रहे हैं, राइट? तो मेक श्योर कि आप सेंसिबल खाते हो ताकि आप एक्सेस वेट नहीं गेन करते हो। और अगेन वो 5 फिंगर्स, इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखें। मिथ्स बहुत होते हैं खाने की, डोंट फॉलो देम, राइट? जैसे कि सफेद चीजें खाओ बच्चा गोरा हो जाएगा, काली चीजें मत खाओ बच्चा काला हो जाएगा। इन सब चीजों से आप प्लीज दूर रहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन्स खाने हैं, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो अनरिफाइंड होते हैं। अभी वो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी जरूरी है, बट लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में तो खास जरूरी है। तो अब गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, जवर, बाजरा, नाचनी, ओट्स, ऐसी सब चीजों पे ज्यादा फोकस करें। आयरन की कमी जनरली हो जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आयरन रिच फूड्स आपको लेने चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, राजमा, एप्पल, बनाना, जैसे बहुत आइटम्स हैं जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो ओमेगा 3 अगर आपके डॉक्टर ने कैप्सूल नहीं प्रिस्क्राइब की है तो कोई बात नहीं,
बट ओमेगा 3 के जो कुछ फूड्स हैं, जैसे अगर आप फिश लेते हो तो आप फिश कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर आप फिश नहीं लेते तो आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडोज, इन सब चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं। अभी भी एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज आपके बेबी अंदर बड़े हो गए हैं, तो स्टमक के लिए जगह नहीं है, तो आप ज्यादा एक वक्त पे नहीं खा सकते। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, मतलब पावर पैक फूड्स आपको स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में मल्टीपल टाइम्स एवरी डे खाने चाहिए। ये मेरी लिस्ट ऑफ प्रेगनेंसी सुपर फूड्स है। स्वीट पोटैटोज, जैसे कि आप पोटैटोज के बदले में इसको कंज्यूम करिए। एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, लीन मीट, फैट, जो स्किन का पार्ट है वो आप निकाल दीजिए। बेरीज अगर फ्रेश नहीं है तो ड्राइड बेरीज भी मिलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। होल ग्रेन्स, एवोकाडोज, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। तो ये आपके सुपर फूड्स हैं एंड डेली इनमें से कुछ कुछ आप अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ये कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। रॉ मीट, अगर कभी बाहर से खाना मंगवा भी लिया और थोड़ा कच्चा लगा तो मत खाइए। जो फॉरेन टाइप की चीजेस हैं जैसे ब्री, ब्लू, इनको आपको अवॉइड करना है। रेगुलर चीज आप ले सकते हो। गाय भैंस अगर घर पे है तो डायरेक्टली दूध निकाल के मत लीजिए, प्लीज पास्चराइज्ड मिल्क ही लीजिए। रॉ एग्स आपके कुछ पर्टिकुलर डिजर्ट्स में भी आ जाते हैं, जैसे चॉकलेट मूस, बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसमें रॉ एग्स होते हैं, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। फिश एक्सेस में नहीं लेना है। अजीनोमोटो जो चाइनीज फूड में होता है आप अवॉइड करें तो बेटर है। चाय कॉफी अगर आप ज्यादा लेंगे तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है, आयरन अब्सॉर्प्शन नहीं होता, तो इसलिए ये भी आपको कम ही लेना चाहिए। मतलब मैं अवॉइड में ले जाती हूँ, लेकिन एक कप या अगर दिन में ले लिया तो ठीक है। अल्कोहल और दूसरे ड्रग्स जो है वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी मेडिकेशंस डॉक्टर से पूछे बगैर आप नहीं लेंगे। इस टाइम पे आपको अपने डेंटल हाइजीन पे खास ध्यान देना है, तो डेंटल चेकअप जरूर करवा लीजिए। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से आंखों का नंबर भी बदल जाता है, तो अगर आपको थोड़ा डिजीनेस हो रहा है, ब्लैकआउट फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने धुंधला धुंधला हो रहा है, तो आई चेकअप जरूर करवा लीजिए। कोई भी झटके वाली मूवमेंट्स अवॉइड करनी है, साइकिल, रिक्शा वगैरह आई डोंट थिंक आर अ गुड आइडिया। आपको ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बेबी के किक काउंट्स अभी मेंटेन करने चाहिए। मोस्ट बेबीज अराउंड 20 वीक्स पे आपको किक्स फील होना शुरू होते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर आपको आपके जो वैक्सीनेशन हैं जैसे टेटनस वगैरह है वो इस टाइम पे लगना शुरू होंगे, तो अपने वैक्सीनेशन पे भी ध्यान दीजिए। अभी थर्ड ट्राइमेस्टर पे एक ग्रोथ स्कैन, ताकि बेबी का डेवलपमेंट हम चेक करें। ये सारे जो टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुए थे, ब्लड टेस्ट, वो रिपीट होते हैं, ये हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है। एंड टेटनस वैक्सीन आपकी कंप्लीट होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। एंड टीडैप वैक्सीनेशन, ये वुपिंग कॉफ के लिए है, अगर आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स कोविड के काफी सिमिलर हैं, और ये 32 वीक्स के बाद लेने से बेबी को भी वुपिंग कॉफ से कुछ हफ्तों के लिए डिलीवरी के बाद प्रोटेक्शन मिल जाता है। इस टाइम पे आपको ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे कि फेक कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे। अगर ये शॉर्ट है, पेनलेस है, इनमें कोई पैटर्न नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं तो पानी का इनटेक आपको इंक्रीज करना है। एंड एलिवेशन, जैसे कि अपने पैर बिल्कुल ऐसे ऊपर उठा करके आपको रखने हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स, ताकि जो फ्लूइड है हार्ट लेवल के ऊपर चला गया है उसको वापस हार्ट के नजदीक वापस ले आना है, तो रिवर्स द फ्लूइड बैक टू द हार्ट। तो जनरली क्या हम एक तकिए में पैर रख देते हैं, उतना एलिवेशन कई बार काफी नहीं होता, तो अगर बहुत सूजन हो रही है तो पैरों को बिल्कुल इस तरह से उठा लीजिए। थकावट वापस आ गई, इस वक्त डॉक्टर आपके बेबी के पोजीशंस भी चेक करेंगे, क्योंकि बेबी का पोजीशन अगर सर नीचे होता है, हेड डाउन होता है, तो वो बिल्कुल फेवरेबल होता है। बैक पेन होना काफी नॉर्मल है बिकॉज वेट बढ़ गया है, तो आप अपने एक्सरसाइजेस और पोस्चर पे ध्यान दें। और अगर हाथ या फेस, मतलब चेहरे वगैरह पे सूजन आ रही है, जैसे अगर आपकी अंगूठियां आपको फिट नहीं हो रही हैं, टाइट हो गई है, तो
तो आप डॉक्टर को जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है। अब थोड़ा सा क्विकली एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स हैं। आई थिंक फॉर मदर्स सबसे मेन बेनिफिट तो होता है कि लेबर और डिलीवरी की तैयारी हो जाती है, लेकिन एज अ काउंसलर हम ये मानते हैं कि एक्सरसाइज से आपके एक्स पेन जैसे बैक पेन, लेग पेन, क्रैम्प्स, एसिडिटी, ऑल्सो आपको नींद अच्छी आती है, आपको एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं, आपकी जो डिलीवरी के बाद की रिकवरी है वो सही रहती है, और आपकी जो वेट गेन है वो कंट्रोल में रहती है। सो फॉर अस देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस, एंड इसके लिए हम एडवोकेट करते हैं कि मदर्स शुड एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमेशा एक्सरसाइज का कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है आपकी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने के लिए, तो दो चीजें कर सकते हैं आप। एंटीनेटल एक्सरसाइजेस ऑफ कोर्स हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना, तो सेफेस्ट प्रोग्राम इज अ वॉकिंग प्रोग्राम। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का आप ध्यान रखें। मेक श्योर कि आप अच्छे जूते पहन के जाएं, वो चप्पल पहन के नहीं निकलना है, क्योंकि स्लिप होने का चांस है, पैरों एड़ियों में दर्द हो जाएगा, अवॉइड दैट। कॉटन क्लोथ्स पहनिए, क्योंकि इससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कूल रहेगा। वो नायलॉन टाइप कपड़े मत पहन के जाइए। हल्का खाली पेट नहीं जाना, तो हल्का स्नैक जैसे फ्रूट वगैरह खा के, और प्लस अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर ले जाइए। आपको वॉक उस स्पेस पे करना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन फिर भी ब्रिस्क हो। आप चिट चैट करके गॉसिप करते करते वॉक नहीं करेंगे, आप वॉकिंग के लिए वॉक करेंगे, राइट? लेकिन आपको ब्रेथलेस नहीं होना है। आइडियल रिकमेंडेशन ये है कि आपको अराउंड 30 to 45 मिनट्स रोज वॉक करना चाहिए। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप डिलीवरी की तैयारी के लिए कर सकते हैं, जैसे स्क्वाटिंग या बटरफ्लाई पोजीशन, लेग रेजेस जो आप मैट पर बैठ के करेंगे, कीगल्स जो आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डीप ब्रीदिंग, जो आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। दोबारा चेतावनी दे रही हूँ, कोई भी एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से जरूर क्लैरिफाई करवा लीजिए। ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आजकल तो क्या है कि अगर डॉक्टर ने परमिशन दे दी तो काफी सारे क्लासेस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, जो आप घर बैठे अंडर सुपरविजन कर सकते हैं। ये जो पीरियड है आपका, ये जो फेज है बॉडी का, आपको अपने बॉडी को ट्रस्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी है, आधी दुनिया कर रही है, तो इट हैज टू बी समथिंग व्हिच इज नॉर्मल। आप अपनी बॉडी को ट्रस्ट करिए, आप अपने नेचर को ट्रस्ट करिए, एंड इससे आपका जो पीरियड है, ये प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड, बिल्कुल रिलैक्सिंग और एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाएगा। ओके, एंड आज के एक और खास बात, कॉड लाइफ और लाइफ एंड परसूट्स की तरफ से आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट वाउचर है। सो आपकी पेशेंस के लिए, आई मीन थैंक यू। आप लोग ने शुरुआत में हमारी इतनी सारी हिकअप्स और टेक्निकल ग्लिचेस में भी हमारा साथ दिया। तो ये जो वाउचर है, ये कॉड लाइफ की टीम आपके साथ टच में रहेगी इस सेशन के बाद और आपको देगी। लाइफ एंड परस्यूट्स इज अ ब्रांड विच मेक्स ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वेलनेस एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये मदर एंड बेबी रेंज है, तो इसमें बेबी मसाज ऑयल हुआ या मदर के लिए बॉडी वॉश हो गया, आपको जो पसंद आए, यू कैन चूज एंड पिक एंड यूज दिस वाउचर फॉर श्योर। These are some books which are available on the market. ये आप Amazon से ले सकते हैं, जो मैंने लिखे हैं, इसलिए मुझे बड़े पसंद है, लेकिन I'm sure you will look it up and you can see what the benefits of each of them are. We are ready for your questions, but उससे पहले मैंने ये सारे coordinates हमारे डाल दिए हैं on the screen. तो मेरा Facebook, Instagram और YouTube, ये दो सब हैंडल्स मैंने आपको दिए हैं. यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. आई वुड लव फॉर यू टू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इसके थ्रू हम टच में रह सकते हैं फॉर मेनी मेनी इयर्स. एंड कॉड लाइफ के भी सारे नंबर्स हैं, कॉलिंग, व्हाट्सएप, टोल फ्री एज वेल एज SMS नंबर. तो आपको जो पसंद हो, टू बुक योर प्रेजेंटेशन, टू गेट योर वाउचर, प्लीज गो अहेड एंड गेट इन टच विद देम.
एंड वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप प्लीज क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए. I will start answering. A small comment I would like to make for all my patients who are present here. अभी जब तक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो just a small thing to discuss, like nausea, as Sonali said very nicely, that you have to identify the trigger points जिससे आपको ट्रिगर होता है. तो बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रिगर किस चीज से होता है, जैसे कि स्मेल है, परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, जो आपके घर के फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, तो यू हैव टू अवॉइड देम. The other thing you can prevent nausea is by taking 6 small meals instead of 3 major meals. जैसे कि ब्रेकफास्ट हम 2 पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि शुरू में हमारा जो स्टमक होता है वो थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन. इट कैनॉट एक्सेप्ट टू मच ऑफ अ ग्लास फुल ऑफ नारियल पानी, a glass full of milk at one go. So divide your breakfast into 2. लास्ट के ट्राइमेस्टर में भी व्हेन द स्टमक कैपेसिटी छोटी हो जाती है क्योंकि बेबी बड़ा हो जाता है, तो हमको अपना ब्रेकफास्ट को 2 में डिवाइड कर सकते हैं, लंच को हम 2 स्मॉल लंचेस में डिवाइड कर सकते हैं, और डिनर से पहले भी हम एक छोटा सा डिनर ले सकते हैं, so that we take 6 small meals instead of 3 major meals. उसके बाद हम हमारे इस सेशन में आई डोंट थिंक हस्बैंड्स या कुछ और भी लोग सुन रहे हैं, पर उन तक भी ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि वी एनकरेज कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बार हस्बैंड या इन लॉज में से 1 पर्सन कम्स टू अस, एंड उससे फायदा ये होता है कि कोऑपरेशन जो मिलता है फीमेल को टू डील विथ हर प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो काफी अच्छा हो जाता है, बिकॉज दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू टू मेक हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंफर्टेबल. सो एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज जनरली इजी फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन, और सेकेंड विजिट हस्बैंड के साथ या इन लॉज, मदर इन लॉ के साथ या सिस्टर इन लॉ के साथ शुड बी इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, सो दैट वो भी ओरिएंटेशन उनको मिल जाए कि व्हाट दे हैव टू कीप ऑन आस्किंग अबाउट द फीटल मूवमेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ कि वो थोड़ी थोड़ी देर में एवरी 2 आवर्स शी इज हैविंग समथिंग और नॉट, बिकॉज फीटल मूवमेंट्स उस समय पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है. तो सबका होना चाहिए कंट्रीब्यूशन इन द प्रेगनेंसी जर्नी. तो एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और एक थर्ड ट्राइमेस्टर में विजिट ऑफ द फैमिली मेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. And the fourth thing I would like to emphasize is that I generally encourage all my patients, all my pregnant women to work till the end, so that जो भी आपको maternity वगैरह मिलता है वो आप बाद में लें, because taking care of the baby is more important. I still feel that delivering a baby, carrying a baby to term is easier, and bringing up later is a task. So first के जो 9 months हमारी प्रेगनेंसी के हैं उसमें हम लोगों को छुट्टी ऑफिस से नहीं लेनी चाहिए. दैट विल हेल्प अस इन सम अदर वे ऑल्सो. वो हमको टाइम हमारा बहुत अच्छा पास हो जाएगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमको बड़ी नहीं लगेंगी, और हम अपना लीव्स भी बचा के रख सकते हैं और बाद में भी कैन यूज देम फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, जो जब हमें ज्यादा जरूरत होगी. और जनरली हम प्रेगनेंसी में 5 to 6 विजिट्स ही जरूरी होता है. हम लोग अपने पूरी प्रेगनेंसी के विजिट्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि एक ही विजिट में, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, और दिस कोविड इज गोइंग टू बी देयर विद अस फॉर अ फ्यू मोर इयर्स आल्सो. सो इसमें हम लोग अपने प्रेगनेंसी विजिट्स को 6 to 7 ही रखते हैं, ऑल 9 months नहीं बुलाते रहते हैं. और एक विजिट में हम लोग लंबे समय के लिए मेडिसिन लिख देते हैं, उसी विजिट में टेस्ट कर लेते हैं, और उसी समय में जो इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं दे देते हैं. तो एटलीस्ट 6 विजिट्स आर इनफ फॉर मेकिंग द होल प्रेगनेंसी कंफर्टेबल फॉर यू, अनलेस अंटिल यू हैव सम हाई रिस्क फैक्टर जिसमें हमारे विजिट्स और इन्वेस्टिगेशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं. So this is all what I wanted to add in the lovely description and lovely presentation that Sonali gave to us, all of us, just now. Thank you so much. अभी एक आध क्वेश्चन है मैम, अगर आप आंसर कर दो तो. पहला है मैंने आस्क की कि आप प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में कुछ बताएंगे, हाउ टू हैंडल इट. प्लेसेंटा प्रीविया इज अ प्रॉब्लम जिसमें प्लेसेंटा नीचे डेवलप होता है,
जब हमारा बच्चा रुकता है तो इट कैन इम्प्लांट, पूरे यूट्रस की वॉल में कहीं भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। अगर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन लोअर सेगमेंट में होता है तो उसी एरिया में प्लेसेंटा क्योंकि बनेगा, तो वो प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में होने की वजह से इट विल बी नियर द सर्विक्स, सो वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। कभी कभी बहुत शुरू के अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर अल्ट्रासाउंडिस्ट लिख देता है कि लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया जैसा कोई वर्ड लिख देता है, तो उसके लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए, because once the uterus grows in size, this placenta migrates. This is actually called placental migration, in which the placenta moves away from the cervix, और वो कई बार mid segment से upper segment में भी migrate कर जाता है। But if the placenta remains in the lower segment till the end, then there are chances that the female, pregnant female, I should not call her a patient, the pregnant female might have some bleeding problems during her last trimester of pregnancy and also during her delivery. तो कभी कभी प्लेसेंटा प्रीविया जो persistent होता है उससे हम लोगों को, उसकी वजह से कभी कभी we have to take the help of a cesarean section for delivering the fetus. That's all. Yeah, one more question from a mother. Okay, I have been prescribed Ecosprin 150. Is it safe for pregnancy? Yeah, Ecosprin is actually indicated. कभी कभी जरूरत होता है जब हमारी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ हमारी प्रीवियस बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री की वजह से हमको पहले अबॉर्शंस हुए हैं या हमको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में जो हम करते हैं डबल मार्कर के साथ पीआईएच स्क्रीनिंग के प्रेगनेंसी के आने वाले समय में हमको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, तब हम लोग शुरू करते हैं और ये बिल्कुल सेफ है। इट इज अ वेरी मिनिमल डोज 75 mg कभी कभी हम देते हैं और जब थोड़ा इंडिकेशन ज्यादा होता है तो वी गिव 150 मिलीग्राम एंड इट इज सेफ। इट इज जनरली स्टॉप at 34 weeks of pregnancy and then we can go ahead for a delivery. So it is safe actually. Okay. There is one more question from a mother. She is saying that I'm in my second trimester and I always feel lack of interest in everything. Am I facing prenatal depression? You have, that is why I'm telling you that bringing your husband or your mother-in-law or your sister-in-law is very important, because prenatal, pre-birth, during delivery, during pregnancy अगर आपको depression है तो the environment of your home has to be taken care of very nicely. अगर आपके family members understand करेंगे तो आपकी ये journey अच्छी होगी, लाइवली होगी, हैप्पी होगी और ये डिप्रेशन आपको नहीं होगा। उसके लिए अगर आपको लगता है कि घर के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन देन यू आर फीलिंग, तो यू शुड योरसेल्फ, कुछ मेडिसिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यू शुड योरसेल्फ अपने रूटीन को इस तरीके से चेंज करें, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें, कुछ स्पिरिचुअल चीजें पढ़ें, कुछ आपकी हॉबीज को शुरू करें, गुड टाइम टू रीड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम भी है और उससे आप अपने जो ये मूड चेंजेस हैं, होते हैं, नॉर्मल है ये मूड स्विंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, आप उससे टैकल कर सकते हैं एंड यू नीड नॉट नीड काउंसलर फॉर दैट, और फिर भी जरूरत पड़ती है तो वी आर देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू अकॉर्डिंगली। Right. There is one mother ma'am who is asking how to deal with belly pain. Belly pain is again because of your posture, I would say. जैसे जैसे ये posture बढ़ता है तो हम लोगों को चलने में पेन फील होता है। कुछ हमारी मेडिसिन से भी फायदा होता है, जो हम लोग रिलैक्सेंट्स देते हैं, प्रोजेस्टेरोन वगैरह देते हैं, और कुछ चीजें मार्केट में भी अवेलेबल हैं, यू कैन सर्च देम, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेल्ट तरीके की चीजें आती हैं जो कि सपोर्ट देती हैं, वो शोल्डर से लेके आपके टमी तक जाता है, बेली तक जाता है और वो थोड़ा सा उसको लिफ्ट कर सकते हैं। स्लीपिंग के समय पर आपको कुछ प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों से आपका जो टाइम है वो
कंफर्टेबली पास हो सकता है. Okay. There is one mother who is concerned that she is not gaining enough weight during her pregnancy. उसके सिर्फ 3 kilos weight gain हुआ है in the first 2 trimesters. So she is worried कि is this going to affect my baby? Okay, actually what happens is that if you are overweight initially and because of pregnancy आपने अपना abnormal dietary habits को ठीक कर दिया है. Sorry to interrupt. Her weight is only 50 kilos, so she is not overweight. She is not overweight. So if she is having a lot of nausea, तो शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी कभी कम भी होता है वेट, लॉस भी होता है, पर उस समय पर इट डजंट मैटर टू मच बिकॉज आपका जो रिजर्व है बॉडी का, जो फूड रिजर्व है, जो न्यूट्रिशन रिजर्व है, दैट सपोर्ट कर देता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर बच्चे के लिए आसानी से पास हो जाता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप धीरे धीरे करके गेन करना चाहते हो, कर सकते हो, और अगर आपका 3 kgs ही वेट गेन हुआ है तो यू कैन हैव सम मल्टीविटामिन, सम प्रोटीन पाउडर्स, यू कैन टेक अ गुड डाइट. आप रेस्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए जिससे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट कुछ वेट बढ़ जाए. और इवन आफ्टर 2 trimesters, if your weight is not much, then the ultrasound, if it says that your baby is growing well, then it is not a very big matter of concern for you. Okay, lovely. So जैसे मैम ने आपको बताया, अगर आपका वेट गेन नहीं भी हो रहा है इतना, लेकिन अगर बेबी का ग्रोथ सही है तो आप थोड़ा चिंता करना कम करिए और डाइट पे थोड़ा ध्यान दीजिए. मैम एक और क्वेश्चन है, इज डार्क येलो कलर ऑफ यूरिन नॉर्मल आफ्टर टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर? Actually not. It can be because of some hepatic problem, यानी कि liver problem की वजह से हो सकता है. अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हैं फिर भी आपका येलो कलर का आ रहा है तो it can be because of some medicines also. But generally ऐसी medicines pregnancy में हम लोग देते नहीं हैं, so you better consult your gynecologist obstetrician and she would write some investigations, especially liver function test, which can detect अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो. राकेश जी, आई थिंक अभी एक आध क्वेश्चन स्टेम सेल बैंकिंग के लिए आ रहे हैं, तो हम कॉड लाइफ क्यों सिलेक्ट करें दूसरे स्टेम सेल बैंक्स को ना ले तो? Look, there are many reasons behind that choosing Cod Life over any other bank, but ज़्यादा उसको stress नहीं करता हूँ मैं. I'll just give one point. Like we are the company who still preserve stem cell in a private banking, so that we make sure कि private banking कराने के बाद भी ownership उनकी बनी रहे sample की. Plus in such cases where genetically you cannot use your sample or by any default you are not able to use a sample, we are open to give them a sample from the public repository free of cost. This is one of the reason. Just to know entire reason about the thing, about the behind choosing Cod Life, they can have a presentation. Okay. एक और क्वेश्चन है, आई थिंक ये फादर ने सुना है कि जो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका खर्चा बहुत होता है, so how is that taken care of? Yes, it is a very expensive procedure to go ahead with the stem cell transplant. But believe me, once you go ahead with the stem cell preservation, we as a company make sure कि our customers who are going ahead with this, up to parents यानी baby जिसका sample preserve हो रहा है, siblings of baby and parents of baby, इनमें किसी को भी requirement होती है stem cell की in future for a treatment, तो we as a company provides insurance of 25 lakh rupees for corporate treatment and 20 lakh rupees of financial assistance for cord tissue treatment. So in totality, we are covering the family up to 45 lakh rupees of insurance, so that you don't have to worry about it. Okay. Doctor, I think one or two more questions for you. So one of the mothers wants to know कि I have a lot of itching in the crotch area. How do I take care of that? Examination of that area has to be done to find out आपको कोई fungal infection हो सकता है, even some skin infection like scabies also can be there. So it is better to consult your doctor, your lady doctor, your gynecologist or a skin specialist. Okay.
All right, I think the last question that I am going to take, it's from a mother who's saying that she thinks she is getting lactose intolerant whenever she drinks milk. अगर आपको मिल्क सूट नहीं कर रहा मैम, तो आप मिल्क की दूसरी चीजें जैसे आप दही, पनीर, चीज ये सब भी ले सकते हैं और कुछ दिनों के लिए दूध बिल्कुल बंद कर दीजिए और ये चीजों पे ध्यान दीजिए. अगर आपको फिर कोई डिफिकल्टी नहीं होती है तो आप then you can continue with only these items and डिलीवरी होने के बाद you can try milk again because कभी कभी प्रेगनेंसी में थोड़ा हाइपर सेंसिटिविटी टू सर्टेन थिंग्स होने के चांसेस हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर होता है तो वो पहले से होगा, प्रेगनेंसी में ही नहीं शुरू होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस. सो डोंट वरी, इट विल बी ओवर वंस योर प्रेगनेंसी इज ओवर. Correct. So that's just that. That little bit of hypersensitivity to कुछ taste items in pregnancy might happen, but you don't call it lactose intolerance. And don't worry, अगर आप दूध नहीं पी सकते हैं तो आप दूध की दूसरी चीजें अगर लेते हैं, कर्ड्स वगैरह, तो आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ. मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, if you don't mind. This mother says, I am overweight and I have been diagnosed with gestational diabetes. But till now, that is 36th week, I have gained only 5 kilos and ultrasound says baby growth is less. Please recommend what food can I take? So this is a tricky situation in which there is growth retardation also and diabetes also. One very important thing to understand is that अगर आप diabetic हैं तो आपको शुरू से कार्बोहाइड्रेट्स मना करे गए होंगे और ऐसे में कई बार ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है. तो इट इज बेटर टू स्टार्ट टेकिंग सम कार्बोहाइड्रेट्स सो दैट योर बेबी ग्रोज वेल. एंड ऑल्सो फॉर डायबिटीज यू हैव टू एड सम अमाउंट ऑफ इंसुलिन टू इट, क्योंकि स्टारवेशन हम नहीं कर सकते हैं एट 36 वीक्स. अगर हमको अभी हफ्ता 2 हफ्ता और है हमारी प्रेगनेंसी के टर्म पहुंचने में, तो बेटर जितना हमारा टाइम अब बचा है उसमें हम थोड़ा अपना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स पे भी बहुत फोकस करना है. फैट्स तो हम नहीं ले सकते उसमें ज्यादा, बट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हम ज्यादा लें. अपने शेड्यूल में एक्सरसाइजेस ऐड करें, थोड़ा सा शुगर उससे न्यूट्रलाइज होगा, और कवर अप विथ इंसुलिन और सम हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट लाइक मेटफॉर्मिन वगैरह, सो दैट हमारा शुगर बच्चे तक जाए और हमारा शुगर ना बढ़े by taking insulin या oral drugs. So बहुत ज्यादा tricky situation है and you need to handle it very intelligently. Superb. Very well said, ma'am. Thank you. And this is just, I think, a message for all the mothers. जो भी हमारे साथ pregnant mothers जुड़े हैं. Pregnancy एक बहुत ही normal चीज है, एक बहुत ही natural चीज है. But लेकिन ये इतना short phase है कि हमको इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए. कोई भी चीज अगर आपको कंसर्न है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लीजिए, क्योंकि उसको रेस्क्यू करने के लिए या उसके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत रास्ते होते हैं. बट इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू रिएक्ट प्रॉम्प्टली. सो इसी पॉइंट पे आई थिंक हम आज का सेशन क्लोज करते हैं मैम, बिकॉज क्वेश्चंस भी हो गए हैं और हम टाइम भी क्रॉस कर चुके हैं. आपके टाइम, पेशेंस, वैल्यूएबल इनपुट्स एंड लवली एडवाइस के लिए वेरी वेरी थैंक यू. इवन आई एक्चुअली गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स टुडे, सो थैंक यू फॉर दैट. Thanks a lot. Thank you so much, Sonali. Thank you a lot. Thank you very much, ma'am. Thank you. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new rule. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.